आगे फादर मिले थे आज नेहा के फादर से कम मिले थे और उसकी फोन पे बात कर रचना आए गए थे कॉन्ट्रैक्ट कटा सिंह अच्छा कटक गए थे आप 3-4 एक मंडे को आएगा फिजिक्स में आएगा मंडे और एक फिजिक्स पार्ट टाइम बायो तो भूलो ना बायो का भी बायो में नहीं मानता था नमस्ते सर आप म्यूटेड हैं यस सर नमस्कार नमस्कार now I am audible okay yes sir Ankita Sachdev and her friend they will join soon Ankita Sachdev and Miss already joined join yeah अति अतः तो कोना कहीं पे वेलकम करते तो आज कर लिया Am I audible? please go ahead we can Am hear I you audible to everyone? Great. yeah we can So, I just wanted to inform you all first that Sakshi won't be able to join. So, I will be taking up the session alone. Is that? I hope that's okay because it was an emergency. okay you are most welcome your friend is not coming And yeah, she won't be able to join. Sakhi is not coming Yeah. okay okay Ankita you are most welcome to our forum this webinar is for you so before Thank you so I much. welcome you I must introduce you our team KT Global School is one of the leading residential school in India. Many celebrities like you see Azaruddin and others, they have started their sports academy in this school. It is a residential school. The school is led by our most educated, qualified principal, Dr. Deep Khera, Punasis Rath, Ms. Aisha Beg, and Gopi Krishna, and other teachers who are IITians. They teach well, they are very famous. And the pattern of this school is now in USA. He is our, he is the main mentor of the school. And when you will come, you will meet all of them. Okay. So about Ankita, she is one of the youth climate change advocates recognized by UNICEF. Ankita has organized a group of volunteers. She has started a NGO in New Delhi, exceptional, and she is working for people with disability to work on climate change. They advocate for more equitable and accessible program for people with disabilities. They conducted donation drive to counter the ideology that persons with disability can only receive donation and cannot contribute. They have made people with disability to learn skill development program and compete with others. She has started a change-making journey and initiated campaign for people with disabilities. She is treated as ambassador for people with disabilities. Now she will share with us her journey, how she worked, and her topic is very unique.
She will talk about climate change and disabilities. Now I invite Ankita to share her view and share her lecture. Thank you. Thank you so much, sir. First of all, a few corrections. I'm not a climate change champion. I am sensitive about issues like climate change, and I want people to be cautious about such things because it is a reality. And I have been working for disability only, but yes, I have been, promoting the ideas and initiatives which are not only inclusive, accessible, but also sustainable. So yeah, that's about it. And apart from that, Exceptionals is just an initiative for now. It's not an NGO. And what we are trying to do is Dr. Pati has very well explained. So I'll begin with me. As you know that I was a part of UNICEF Young People's Action Team, and I'm UN India Yuva advocate. Apart from that, I'm a person, right? I'm a person with visual impairment. पहले तो सब ये बता दो, is everybody comfortable in English या फिर मैं bilingual हो सकती हूँ? क्योंकि I don't want to be like I don't want language barrier to be here. क्योंकि मुझे बहुत अच्छी हिंदी बोलनी भी आती है. बोलिए ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में बोलिए. कंफर्टेबल. परफेक्ट. ऐसा तो नहीं है ना यहाँ पे कि जैसे हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक भाषा समझ में ना आती हो. नहीं. all our is a conversation tell them to listen Hindi and English. Okay. You are most welcome. You are most welcome. परफेक्ट. थैंक यू सो मच सर. तो अब हम बात करते हैं कि आज मैं किस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ. क्लाइमेट चेंज एंड डिसेबिलिटी दो अलग अलग इश्यूज दिखते हैं, पर मेरा क्या मानना है कि हर एक इशू दूसरे इशू से, तीसरे इशू से, चौथे इशू से किसी ना किसी तरह रिलेटेड होता है. वी सी देम एज डिफरेंट एंटिटीज, एज डिफरेंट टॉपिक्स, but each and every topic, each and every issue which exists in this world is connected to the other one in one way or the other. Only because of this coexistence, interconnectivity, all the issues are existing in this same world. Okay, and when we are working for sustainable development goals और when we are working for our society, हम किसी एक इशू से स्टार्ट करते हैं. जैसे डॉक्टर पति ने क्लाइमेट चेंज से स्टार्ट किया, आप सबने अपने अपने तरीके से स्टार्ट किया, मैंने डिसेबिलिटी से स्टार्ट किया. बट हम कभी भी एक इशू पे लिमिटेड होके या रिस्ट्रिक्टेड होके नहीं रह सकते हैं. दूसरा इशू आके कभी ना कभी आपको इफेक्ट करेगा ही. अगर हम डिसेबिलिटी की बात करें तो डिसेबिलिटी के साथ जेंडर इश्यूज भी आते हैं, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज भी आते हैं, फाइनेंसेस एक इशू आता है, जॉब सीख करना यंग लोगों के लिए वो एक इशू जुड़ा हुआ है, क्लाइमेट चेंज जुड़ा हुआ है. आज हम बात करने वाले हैं कि क्लाइमेट चेंज और डिसेबिलिटी ये दो इश्यूज किस तरीके से जुड़े हुए हैं. हैव यू गाइस इज देयर एनीवन इन दिस रूम, कोई भी ऐसा है जिसने इन दोनों टॉपिक्स के कनेक्शन के बारे में पहले सोचा हो? No. ओके. तो एज पर माय एक्सपेक्टेशन इस तरीके से इन दो इश्यूज को रिलेट करके सोचने वाले लोग बहुत कम हैं. ओके, नाउ आंसर अनदर क्वेश्चन. एक और सवाल है मेरा. जब क्लाइमेट चेंज होता है, हमारा हवा, पानी, ये सब पोल्यूशन की वजह से खराब होता है और इनकी क्वालिटी जब डिटीरियोरेट होती है और हमारी बॉडी उससे इफेक्ट होती है, तो क्या हम सबकी हेल्थ उससे किसी ना किसी तरह इफेक्ट होती है बुरे तरीके से या नहीं होती है? Health is affected. डेफिनेटली इज अफेक्टेड. अब जब हेल्थ अफेक्ट होती है, उसका वो एक बहुत बड़ा रीजन होता है डिसेबिलिटी का. एक एग्जांपल देती हूँ, कंजंक्टिवाइटिस ब्लाइंडनेस का सबसे बड़ा रीजन है इन इंडिया. अगर ज्यादातर ब्लाइंडनेस होती है, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ यही कारण है, बट डेवलपिंग कंट्रीज में एक बहुत बड़ा रीजन होता है ब्लाइंडनेस. ब्लाइंडनेस इज अ डिसेबिलिटी. हम सब ये बात समझते हैं कि ब्लाइंडनेस यानी अंधापन एक डिसेबिलिटी या फिर एक विकलांगता है. ठीक है, तो कंजंक्टिवाइटिस एक बहुत बड़ा कारण है ब्लाइंडनेस का या दृष्टि बाधिता आने का. अब क्यों है, क्या है कंजंक्टिवाइटिस?
जब हमारे आसपास बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो डस्ट पार्टिकल्स जाके हमारे आई लैशेस यानी हमारी पलकों में फंस जाते हैं। जब वो पलकों में फंसते हैं, हमारी आंखों में खारिश होती है, इचिंग होती है। एंड जब व्हेन वी रब आवर आईज, जब हम उन आंखों को रब करते हैं, मलते हैं, हमारी आंखों के आगे की ट्रांसपेरेंट लेयर, जिसको हम कंजंक्टिवा बोलते हैं, जो हमारे कॉर्निया को, हमारे आइरिस को बचा के रखती है, वो छिलने लग जाती है। जब वो छिलने लग जाती है, तो कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। अब वो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन अगर ट्रांसपेरेंट है, तभी उसमें से लाइट और बाकी चीजें रिफ्लेक्ट हो पा रही हैं। जब वो छिल जाएगा तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। अब जब वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, तो उसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती और चीजें दिखाई देनी या तो बंद हो जाती है या धुंधली हो जाती है। इसी वजह से कंजंक्टिवाइटिस होता है और इसी वजह से ब्लाइंडनेस आती है। इसकी वजह से कैटरैक्ट भी होता है, जो कि और भी बड़ा कारण है ब्लाइंडनेस का डिवेलपिंग कंट्रीज में। इट इज नॉट जस्ट अबाउट ब्लाइंडनेस। अगर हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करें, जो दिमाग से जुड़े हुए डिसऑर्डर्स होते हैं, बी इट सेरेब्रल पाल्सी या किसी भी तरह का कोई भी डिसेबिलिटी हो, उसका कहीं ना कहीं एसोसिएशन आपको क्लाइमेट चेंज से मिलेगा। हम क्या बोलते हैं, फॉग हो जाता है बहुत ज्यादा, ग्लोबल वार्मिंग इज एन इशू, बट ग्लोबल कूलिंग इज अ बिगर इशू। आज के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट्स होते हैं, खासकर एरोसोल्स, उनकी वजह से, मैं क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी चैंपियन नहीं हूँ, मुझे ज्यादा नहीं पता। यहाँ पे इस रूम में जितने लोग हैं मुझसे बेहतर जानते होंगे। तो एरोसोल्स की वजह से ग्लोबल कूलिंग होती है, और जब ग्लोबल कूलिंग की वजह से ज्यादा फॉग आ जाती है, कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। डेटा आप देखिए जाके, यू विल फाइंड विंटर्स में जब फॉगी वेदर होता है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। और जब वो रोड एक्सीडेंट, फॉग छोड़िए, स्मॉग के टाइम पे भी रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, जो दिल्ली वाले एरिया के अराउंड हमें स्टबल बर्निंग के कारण या फिर बाकी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन के कारण स्मॉग देखने को मिलता है। तो उस टाइम पे भी बहुत सारे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं। अब जब रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत तरह की इंजरीज होती हैं, और काफी सारी इंजरीज उसमें से डिसेबिलिटी का कारण बनती हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हमें ये बताते हैं कि जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है जैसे जैसे, वैसे वैसे डिसेबिलिटी के चांसेस बढ़ रहे हैं। एक प्रेग्नेंट मदर है, अगर उसका एक्सीडेंट हुआ ऐसे किसी कारण से, या फिर अगर उसने साफ एयर के अंदर ब्रीथ नहीं किया है, उसने इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स को, रेडिएशन को ऑब्जॉर्ब किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो जाके उसके बच्चे को इफेक्ट करेगा और उसके बच्चे के अंदर किसी भी टाइप की डिसेबिलिटी को अराइज करा सकता है। वो डिसेबिलिटी दिमाग से जुड़ी हुई हो सकती है, वो डिसेबिलिटी हमारे बॉडी पार्ट से जुड़ी हुई हो सकती है, वो डिसेबिलिटी हमारे सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई हो सकती है। इजंट दैट ट्रू? अभी तक मैंने जो बोला उसमें से किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ डिसएग्रीमेंट या कुछ लगता हो कि नहीं ये चीज सही नहीं है, ऐसा कुछ? I think here they are not the direct impact of climate change, they are the indirect impact of climate change. Well, one thing is that a pregnant lady हम्म। uh, may have, exactly, I don't know the medical data or statistics, but I या believe it must have a greater impact on the हम्म। newborn baby. So न्यू that may बॉर्न lead बेबी to नहीं। हम्म। या प्लीज कंप्लीट। that may lead to this disabled, that is a population of disabled or I can say specially abled people. But otherwise, the rest all, I believe they are the indirect impact. For example, road accident and all. Of course, ultimately they became disabled, but straight away connecting this to climate change. Well, I'm afraid how far we can directly link it to it. But still, रोड एक्सीडेंट्स इज एन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, यस। बट उसके अलावा बहुत सारे डायरेक्ट इम्पैक्ट्स भी होते हैं। व्हेन यू कंज्यूम वाटर विच इज नॉट हेल्दी, it may lead right. it will directly damage your neurons, right? And when your neurons are damaged, अगर आपका, क्योंकि हमारा दिमाग हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, अगर हमारे कुछ स्पेसिफिक टाइप के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएंगे, तो हमारे सिर्फ सोचने समझने की क्षमता नहीं, बल्कि मूव करने की, हाथ पैर चलाने की जो कैपेसिटी है, वो भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। एंड व्हेन यू आर नॉट एबल टू मूव योर लेग्स और आर्म्स प्रॉपरली, और व्हेन यू आर नॉट एबल टू सी, तो वो, या फिर व्हेन यू आर नॉट एबल टू हियर,
वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है। नॉइज पोल्यूशन डेफनेस का सबसे बड़ा कारण है। Yeah. So this neurological problems I've recently, I don't know where I've read it, but recently I've gone on through an article that this climate change is a greater impact on the neurological part of a person, and there is an increase of 8% in those kind of cases in the last 10 years. So, well, Yeah. they are the direct impact of climate change on our neurological development, that is, you can say, nervous system. Yeah. Okay, so still I'm not able to find out how he or you, your organization, NGO can directly address this issue. And Yeah, we are because directly coming to that अभी इसके बाद. Abhi, so far we have just discussed how climate change is leading to increased number of disabilities or cases of disabilities in the world. अभी तक तो हमने ये डिस्कस किया है. इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि what are the things we can do, right? Yeah. that is the main point So, that we can discuss. sorry. That is the main theme on which we can discuss, that what we can do to Exactly. address such kind of. एग्जैक्टली बट उस पे बात करने से पहले मुझे लगता है कि हमें ये क्लियर करना बहुत जरूरी था कि क्लाइमेट चेंज और डिसेबिलिटी किस तरीके से जुड़े हुए हैं, राइट? अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं. जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि क्लाइमेट चेंज डिसेबिलिटी को मतलब डिसेबिलिटी का एक रीजन बनता है, अक्सर बनता है. उसके अलावा अब हम ये देखते हैं क्या क्लाइमेट चेंज सिर्फ नॉन डिसेबल्ड पॉपुलेशन को इफेक्ट करता है या फिर डिसेबल्ड पॉपुलेशन को भी करता है. अब आप सब बोलोगे बहुत इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है. ठीक है, शायद इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हो, बट ये समझना बहुत जरूरी है कि वो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हमें क्या कॉस्ट करा सकता है या फिर वो कितना बड़ा है. Isn't that? So let's jump on to it. When we talk about climate change affecting our health, हमने अभी बात करी कि रेगुलर लोग जो हैं जब वो इस तरह की इंजरीज, ट्रॉमास या पोल्यूशन को फेस करते हैं, दे end up having one or the other kind of health issue or disability with them. But अब हमें ये समझना है कि जिस तरह से वो polluted air, वो polluted water, वो noise एक नॉन डिसेबल्ड को इफेक्ट कर रही है, बिल्कुल उसी तरीके से वो डिसेबल्ड को भी इफेक्ट कर रही है. इन द सेम वे अगर नॉन डिसेबल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनरल पॉपुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करे, वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करे, वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करे, तो उसी तरह से इट इज ऑल्सो आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस तरह की प्रैक्टिसेस को फॉलो करें जो क्लाइमेट को ज्यादा मतलब डिटीरियोरेट ना करें. नाउ यू विल टॉक अबाउट पिकिंग अप द just give me a minute. Yeah, am I audible? We can hear you. Thank you. Oh, go ahead. Great. Thank you. Sorry for the interruption. Yeah. So the next thing I was saying was the way regular population needs to focus on sustainability, and they need to take care of their climate, their environment without we should opt sustainable practices. In the same way, regular persons with disabilities should also do what our organization has been advocating, or our initiative, my initiative has been advocating for, is equal rights and responsibilities for persons with disabilities. इक्वल राइट्स की बात हर कोई करता है, हमें ये राइट चाहिए, वो राइट चाहिए. इक्वल राइट्स की बात हर जगह होती है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, बट नोबडी टॉक्स अबाउट, और वेरी वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल टॉक अबाउट equal responsibilities for persons with disabilities.
what I have been thinking about is कि हम छोटे छोटे स्टेप्स से स्टार्ट कर सकते हैं बाय मेकिंग पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, आप किसी भी डिसेबिलिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, वहां सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। अब मैं खुद रेगुलर स्कूल में रही हूँ, तो मेरा माइंड थोड़ा सा अलग तरीके से फंक्शन करता है। बट व्हेन यू आर लिविंग ऑल अलोन, आपको पता है आपको बाहर जाना है, ठीक है, आपको बाहर जाना है। लोग बोलते हैं, सब बोलते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए, राइट। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करेंगे, जो प्राइवेट व्हीकल्स से एमिशंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं कम होंगे, एंड इट विल बी गुड फॉर द एनवायरनमेंट एज अ होल, राइट। हम सब यही सुनते आए हैं, यही बोलते आए हैं, और यही प्रैक्टिस करने की कोशिश करते आए हैं। बट अगर हम एक पर्सन विद डिसेबिलिटी की पर्सपेक्टिव से सोचें, दिल्ली में देयर इज मेट्रो, ठीक है, मेट्रो में एस्कॉर्ट फैसिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे मेट्रो यूज करना इज नॉट अ बिग चैलेंज, वेरी बिग चैलेंज। लेकिन मेट्रो स्टेशन तक जाना, काफी सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहां मेट्रो स्टेशन बिल्कुल आपके डोर स्टेप के पास नहीं होता है, या फिर आप अपनी केन लेके नहीं जा सकते हो मेट्रो स्टेशन तक, क्योंकि यहाँ तो रोड्स पे टैक्टाइल पाथ्स नहीं है। अगर टैक्टाइल पाथ्स हैं तो रोड्स के ऊपर जो टैक्टाइल पाथ्स है उनके ऊपर पोल्स, छोटे छोटे पिलर्स जो होते हैं वो लगे हुए हैं। उसके ऊपर से अगर आप रास्ते में चल के जा रहे हो केन लेके अकेले मेट्रो स्टेशन तक, तो आपकी जो केन है ना, वो आपको जमीन पे रखे हुए जो ऑब्स्टेकल्स हैं, पत्थर है या कोई भी चीज है, उसके बारे में तो बता देगी। लेकिन ऊपर बिजली की तारें सर की तरफ लटक रही है, उनको केन कैसे बताएगी? इंसान तो जाके टकराएगा बिजली की तारों में, करंट भी लग सकता है। उसके अलावा कई बार पेड़ की टहनियां बाहर निकली होती हैं, उसके बारे में आपको आपकी छड़ी नहीं बता सकती है ना। तो उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपके आसपास कोई इंसान भी नहीं है जो आपको मेट्रो स्टेशन तक छोड़ के आ सके, आपको डेफिनेटली एक ऑटो, उबर बाइक, रैपिडो कुछ तो लेना पड़ेगा। अगेन एमिशन। उसके बाद आप मेट्रो स्टेशन तक जाओगे, वहां पे जाके आप मेट्रो लोगे, फिर जहां आपको पहुंचना है वहां पहुंचोगे, उस मेट्रो स्टेशन से उतरोगे, और अगेन अगर आपको लेने के लिए वहां कोई नहीं है और आपका डेस्टिनेशन मेट्रो स्टेशन से थोड़ा दूर है, अगेन यू विल हैव टू टेक अ बाइक और समथिंग। क्या होगा इससे? एमिशंस जो हम कम करना चाह रहे थे वो किसी भी एंगल से कम नहीं होंगे, बिकॉज हमने दो जगह राइड यूज करी, और इनकन्वीनियंस और सेफ्टी चैलेंजेस और ज्यादा हो जाते हैं। अब उस वजह से इंसान क्या सोचता है, यार इससे बेटर ये है मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मनी पे करके, क्योंकि पहले मुझे एक राइड का पे करना है, दूसरी राइड का पे करना है, मेट्रो का भी फेयर पे करना है, एमिशंस भी कम नहीं हो रहे हैं, तो ओके व्हाई नॉट टेक अ सिंगल राइड। मैं यहाँ से अपनी राइड बुक करती हूँ और अपनी डेस्टिनेशन पे डायरेक्टली पहुंच जाती हूँ। अब वहां पे भी सेफ्टी चैलेंज है, एमिशन भी हो रहा है, एंड जिस ड्राइवर के साथ आप जा रहे हो वो ड्राइवर ट्रस्टवर्दी है या नहीं, उसको पता चल जाएगा आपको देखते ही कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, एंड स्पेशली अ गर्ल विद डिसेबिलिटी। वो आपको कहीं का कहीं ले जाए, आपको तो रास्ता भी नहीं दिख रहा है अपार्ट फ्रॉम द मैप्स यू आर ट्रैकिंग ऑन योर फोन। इट्स अ ह्यूज रिस्क। द लाइफ इज ऑल फुल गैम्बल फॉर अस। आप हर बार हर चीज में, छोटी से छोटी चीज में गैम्बल करते हो। यू माइट बी सक्सेसफुल एंड survive, you might not be successful at one point of time and you will die, do or die होती है हर चीज। अब ऐसे में इंसान सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या सोचे? अब इन सब चीजों के, इन सब थॉट प्रोसेसेस के साथ, क्योंकि मैंने सिर्फ खुद को नहीं देखा है, मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी हर रोजमर्रा की जिंदगी में, क्योंकि आपको कॉलेज जाना है, पढ़ना है, जॉब करनी है, कुछ भी करना है, छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, क्योंकि लाइफ नहीं रुकती है सर, लाइफ नहीं रुकती है, लाइफ चलती रहती है, ठीक है। आपको अब सरवाइव करना है, डू और डाई वाली सिचुएशन में यू आर सपोज टू बी वेरी वेरी कॉशियस अबाउट एवरीथिंग, बिकॉज keeping in the mind कि you are a person, first of all you are a human being, secondly you are a girl, thirdly you have a disability with you, और उसके बाद यू आर नॉट एम्प्लॉयड, आप अपने पेरेंट्स के पैसों पे सरवाइव कर रहे हो, आपको इकोनॉमी का भी, इकोनॉमिकल सॉल्यूशंस चाहिए। अब ऐसे में हर जगह अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा में ये मिलता है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर क्लाइमेट चेंज, हैव नॉट बीन डूइंग एनीथिंग कॉन्क्रीट फॉर द क्लाइमेट चेंज। ऐसे में सोल्यूशन क्या है? मतलब क्या कर सकते हैं हम? आपको क्या लगता है क्या सोल्यूशन है इन सब प्रॉब्लम्स In का? fact, this is a general problem for any disabled person. So या for this, we have to think some out of box, some kind of
transportation facility. So that has to be thought about, or else the human society should be so empathetic that they must come up of their own to provide a helping hand to these people. So awareness, I believe awareness at this present time is the only solution for this. Otherwise, technology can be one of the other parameters which can be brought into, and they can help this kind of, they can solve this kind of problems. But as a member of the society, now I believe that awareness and our willingness to extend our helping hand to such kind of people should be of priority. That is what I can think at present. Okay. What else? Do we have any other ideas in the room? Anybody want to share? Ankita, I think you can react to it. Okay. So, okay, the solution that has been shared is a very good one, that we need to raise awareness and we need to develop empathy and sensitivity. Very true, very well said. But उसके अलावा क्या हो सकता है? Accessibility. वर्ड से शायद हम सब फेमिलियर होंगे, सुना भी होगा. बट प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेसिबिलिटी, मेरी प्रॉब्लम है कि मैं पहले प्रॉब्लम बताती हूँ फिर सोल्यूशन लाती हूँ. सो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है? हर चीज का सोल्यूशन सजेशन मेरे पास है, पर मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उन सोल्यूशंस को जाके इम्प्लीमेंट कर सकूं, बिकॉज आई एम नॉट द गवर्नमेंट. ठीक है? आई एम नॉट द गवर्नमेंट, आई एम नॉट द एंटायर वर्ल्ड, आई एम जस्ट अ सिंगल पर्सन लिविंग इन दिस यूनिवर्स. ठीक है? तो आई टॉक अबाउट द प्रॉब्लम बिकॉज हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में लोगों को नहीं पता है, until and unless उन्होंने बहुत करीब से देखी हो या फिर उनकी खुद की हो. तो आई टॉक अबाउट द प्रॉब्लम एंड देन कम टू द सॉल्यूशन. तो पहली प्रॉब्लम्स वी हैव डिस्कस्ड, राइट? थोड़ी बहुत. अब अगली प्रॉब्लम आते हैं. प्रॉब्लम मैंने अभी पर्सन के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करी है. अब सोल्यूशन लाने के लिए हमें प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी अपने पॉलिसीज और अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे. हम हमेशा किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन, किसी भी बिल्डिंग के डिजाइन को सुंदर बनाते हैं. जब वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाती है, लास्ट में एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं. और फिर क्या होता है? इन द एंड एक्सेसिबिलिटी आ ही नहीं पाती है. सेफ्टी भी कॉम्प्रोमाइज होती है पर्सन विद डिसेबिलिटीज की, और सेफ्टी के चक्कर में जो हम सोल्यूशंस लेके आते हैं, सो कॉल्ड जुगाड़ लेके आते हैं, उसके चक्कर में हमारे क्लाइमेट को नुकसान पहुंचता है. सो द बेस्ट पॉइंट इज कि पहली बात तो आप एक्सेस, इसके ऊपर अभी आप रिसेंटली रिटन अ पीस ऑल्सो, जो थोड़े टाइम में शायद पब्लिश होगा. सबसे पहले तो एक्सेसिबिलिटी को बाद में नहीं, डेवलपमेंट के स्टेज पे माइंड में रखा जाना चाहिए. एक्सेसिबिलिटी टेस्टर्स होते हैं, ऑडिटर्स होते हैं, और वो सब भी छोड़िए. आपको पर्सन विद, आप एक पर्सन विद डिसेबिलिटी लेकर आएंगे ना, वो आपको 1000 तरह की, जितनी भी 21 डिसेबिलिटीज लिस्टेड है इस टाइम पे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंदर, आपको एक एक डिसेबिलिटी के बारे में जानने के लिए आपको 21 से ज्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. ठीक है? आप किसी भी स्टूडेंट को लाइए, वो आपको अपनी प्रॉब्लम बताएगा और सोल्यूशन भी देगा साथ. तो हमें डेवलपमेंट, किसी भी प्रोजेक्ट को, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो कोई बिल्डिंग हो, चाहे वो कोई मॉल हो, कोई स्कूल हो, या फिर मेट्रो स्टेशन हो, कोई सोसाइटी हो, किसी भी चीज को बनाते टाइम, या कोई ऐप हो, कोई वेबसाइट हो, इन सबको डेवलप करते टाइम हमें एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, ना कि डेवलप करने के बाद. ये सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए हेल्पफुल नहीं है. कई बार एक्सेसिबिलिटी जब लास्ट में टेस्ट होती है, हमें अपना पूरा डिजाइन चेंज करना पड़ता है, जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है और प्रॉफिट कम होता है ना? इस वजह से अगर हम पहले एक्सेसिबिलिटी को माइंड में रखेंगे डेवलप करते टाइम, तो वो डेवलपर के लिए या फिर जो बिजनेस बिजनेस पर्सन है उसके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल होगा. नेक्स्ट चीज हमें क्या करनी है? सबसे बड़ा सोल्यूशन तो देखो एक्सेसिबिलिटी ही है. उसके अलावा उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करना पड़ेगा जो डिसेबल्ड लोगों के साथ एसोसिएटेड है. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर लोग सिर्फ यही ध्यान दे रहे हैं कि कैसे सरवाइव करना है, कैसे आपको सेफ प्ले करना है, अपने आप को कैसे बचा के रखना है, अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है, किस तरह से आना जाना है, किस तरह से
खाना खाना है, किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस तरह से नौकरी करनी है, बस ये सब। लेकिन अगर इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोई क्लाइमेट, सिर्फ यहाँ पे डोनेशंस की जरूरत नहीं होती है सर। हम डिसेबिलिटी जैसी, डिसेबिलिटी से रिलेटेड एनजीओ के बारे में सोचते हैं, ओके ठीक है यार, दान देने से पुण्य लगता है। पुण्य, कोई पुण्य नहीं लगता है। अगर आपको वाकई में इनके लिए काम करना है ना, तो इन्हें इतना केपेबल बनाओ कि ये आके, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके बोल रही हूँ, डॉक्टर पति ने इनवाइट किया है मेरे को यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आई हैव मेड माई सेल्फ इन अ, आई हैव डेवलप्ड माई सेल्फ इन अ वे कि मैं यहाँ पे आके इन इश्यूज के बारे में बोलने का माइट रख सकूं। बट हर पर्सन विद डिसेबिलिटी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। क्यों क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वो इतनी अंडरस्टैंडिंग ही डेवलप नहीं कर पाते। क्यों अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें मौका ही नहीं दिया जाता। क्यों मौका नहीं दिया जाता? क्योंकि वो एनजीओ के अंदर रहते हैं जहाँ पे सिर्फ उन्हें उनके टीचर्स उनका सर्वाइवल सिखा रहे हैं, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जितने भी दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस पर्सन, गवर्नमेंट आ रही है, वो इन्हें सिर्फ डोनेशंस और फ्री की चीजें देने की बात कर रही है। कोई ये बात तो कर ही नहीं रहा है कि इनकी नॉलेज, इनकी कैपेसिटी को कैसे एनहांस किया जाए। तो व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच आर वर्किंग फॉर क्लाइमेट चेंज नीड टू डू इज, उन्हें इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ टाई अप करना चाहिए, और वहां पे इस तरह के वेबिनार्स, इस तरह के लेक्चर्स डिलीवर करने चाहिए जो सस्टेनेबिलिटी से कहीं ना कहीं एसोसिएटेड हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं रही हूँ एक ऐसे ऐसे संस्था में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी उस संस्था का, मैं एक डिसेबिलिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन में बहुत टाइम तक रही हूँ, और मैंने उनका कल्चर देखा है। ठीक है? तो वहां पे क्या होता है, लाइट, लाइट हमें किस लिए चाहिए होती है? क्योंकि हमें देखना है। देयर आर पर्सन विद ब्लाइंडनेस जिन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो सारे स्विचेस ऑन कर देंगे, और लाइट भी चल रही है, फैन भी चल रहा है, लाइट का कोई यूज नहीं है उनके लिए, और जब वो रूम से बाहर जाएंगे दे विल नॉट स्विच ऑफ द लाइट्स और फैन। क्यों? क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एक रिसोर्स है, somebody इज पेइंग फॉर दैट, और जब वो रिसोर्स वेस्ट हो रहा है तो कितने लोग बिना बिजली के बीमार पड़ रहे हैं। उन्हें ये पता ही नहीं है उस इलेक्ट्रिसिटी को लाने के लिए कितना सारा पानी, कितना सारा ऑयल लग रहा है, और कितने सारे एमिशंस हो रहे हैं। दे डोंट नो अबाउट इट डिस्पाइट बीइंग एजुकेटेड। वो पढ़ रहे हैं, वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, वो स्कूल में है या कॉलेज में है, पर उन्हें इन चीजों के बारे में नहीं सिखाया गया है। और उसके बाद अगर हम उन्हें ब्लेम करेंगे तो उनकी भी गलती नहीं है। अगर एक नॉर्मल बच्चा जो स्कूल में जा रहा है, वो इन चीजों का ध्यान रख पा रहा है, वो कूड़ा डस्टबिन में फेंक रहा है, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग, और वो लाइट और फैन को टाइम पे ऑन ऑफ करने का ध्यान रख पा रहा है, वो इसलिए नहीं रख पा रहा है कि उसको पहले से आता है, वो इसलिए रख पा रहा है क्योंकि उसने अपने आसपास लोगों को वो चीज करते हुए देखा है, और उसके स्कूल में उसको ये चीजें सिखाई गई हैं। लेकिन पर्सन विद डिसेबिलिटीज के केस में मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि किसी को नहीं सिखाया जाता है, बहुत जगह सिखाया जाता है, और बहुत जगह लोगों को आता भी है, लेकिन बहुत जगह नहीं भी आता है। तो वहां के लिए वी शुड वर्क ऑन इस तरह के स्किल्स, इस तरह की नॉलेज बिल्ड करने के ऊपर हमें काम करना चाहिए, ताकि हम उन्हें इक्वली रिस्पॉन्सिबल बना सके, और उन्हें ये बताना है कि उन्हें दुनिया से सिर्फ लेना नहीं है, उन्हें दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट भी करना है। पर्सन विद डिसेबिलिटीज को सिर्फ लेना सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में माइंडसेट बना हुआ है, अगर अंधे को खीर खिलाओगे तो पुण्य लगेगा। ऐसा नहीं है प्लीज। उन्हें सिखाना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा कि वो भी इक्वली केपेबल है, कि वो सोसाइटी को कुछ दे पाए और एक बेहतर जगह बना सके रहने के लिए, खुद के लिए भी और बाकी सबके लिए भी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर कोई मेरी किसी भी बात से किसी को बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। मेरा इंटेंशन किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट करना नहीं था। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि जो मैंने फेस किया है, देखा है अपने अराउंड, अपना एक्सपीरियंस मैं आप सबके साथ शेयर कर पाऊँ, और हम कोई पॉजिटिव चेंज ला पाए इस सोसाइटी में, ताकि सब लोग हेल्दी रहें, डिसेबिलिटी के केसेस कम अराइज हों, और जो ऑलरेडी डिसेबल्ड लोग हैं वो उसी तरह से सोसाइटी में रिस्पेक्टफुली रह पाए जिस तरह से बाकी लोग रहते हैं, नॉट जस्ट बाय टेकिंग बट ऑल्सो बाय कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, क्योंकि अगर सोसाइटी हमारी है तो हमें उसे सिर्फ लेना नहीं है, उसे देना भी है। थैंक यू। Very well spoken, Ankita. It was really enlightening and, confirmation of the facts, what we as a school do, and as a member of society also, that we do support the people with disability, but we do not
help them too much that they become dependent on the society. And I think what all Yeah. points you mentioned, relation between the climate change and disability is something very new, but yes, you could understand, of course, climate change can also be one of the important, factor for people to become disabled in future. So I think we all are in sync. Of course, you are doing in a different level. We as a school are busy doing our bit. Let me put on record that our children have been trained by now that they do not leave rooms without switching off. They are aware Yeah. consciously that they are an important and a responsible member of society and they have to do their bit. Of course, as a human, we have been habituated to a lot of comforts in life. So that is there in as such, but we are avoiding as much as wastage possible. So that is what I would like to say from this end. It was lovely listening you and look forward to have you in the conference in November. And sincere thanks from the whole family of KTGS and IIJ. Thank you very much for your time. Thank you so much for listening to me and understanding what I was trying to say and not taking it in a wrong or negative manner. Thank you so much. Thank you very Someone of much. my Okay. Thank you very much, Ankita, for your sharing your views, which enlightened us, and you have spoken from your heart the points which we have not known, and this is really enlightening and heart touching. And we look forward to Thank you what so much for listening to me. we missed your friend. Tell her that next time she will come with you to our conference. There is standing invitation She'll- for you both. Okay. Yeah. So we look forward to work with you. Thank you very much for your valuable time. Thank you. Thank you so much. Have a great evening ahead, everyone. Okay. Thank you, Dr. Pati. Slides में कहाँ से कुछ explain recording तो गई था। identify करें, climate change रो विचार उठी, identify करें।